امریکی فضائیہ کے ایران پر حملے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق امریکی فوج ایران پر فضائی حملے کر رہی ہے۔ حملوں کا منصوبہ 2 ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اسرائیل کو بھی حملوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو بھرپور اور سخت سبق سکھانے کی دھمکی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ اردن میں امریکی افواج پر حملے پر ایران کو سخت سبق سکھایا جائے گا۔ ایران کا گزشتہ روز ہونے والا حملہ غیر متوقع تھا۔ امریکی فورسز کے پاس ایرانی میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے محض چند منٹ تھے۔ عراق میں ملیشیا گروپ پر حملے سے قبل عراقی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا۔ ایران کے حمایت یافتہ عسکری گروہ دنیا کے لیے کینسر ہیں۔ امریکی دفاعی نظام نے ایران کے بیلسٹک میزائلوں کو کامیابی سے ہوا میں تباہ کر دیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں حملے، 20 افراد ہلاک، 32 زخمی ہوئے۔ آبنائے ہرمز میں 3 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کے مطابق حملے ایرانی حامی گروپوں اور وابستہ مسلح گروہوں کے خلاف کیے گئے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ عراق میں امریکی اور سعودی حملوں کے بعد ہنگامی اجلاس، صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے ساتھ تصادم نہیں، کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کی بحر احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کی کوشش۔ خبر ایجنسی کے مطابق حوثیوں کے حملوں کے بعد سعودی عرب نے اتحاد کی تشکیل کے لیے متعدد ممالک سے رابطے کیے۔ مظفر آباد سری نگر نہیں ہے، یہ مظفر آباد ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اپنا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے، کہ وہ وائلنس استعمال کر کے، دھوپ کے زور پہ دھاندلی کر کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں عوام ان سے نفرت کرتے ہیں، بس ناپسند نہیں، یہ نفرت تک بات پہنچ چکی۔ یہ مظفر آباد ہے، سری نگر نہیں۔ کشمیری ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تشدد اور بندوق کے زور پر الیکشن جیتنے والوں سے عوام نفرت کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے مظفر آباد میں پریس کانفرنس۔ چودھری یاسین کے حلقے میں 30 پولنگ سٹیشنز پر دھاندلی کے ویڈیو ثبوت ہونے کا دعویٰ۔ نتائج مسترد کرتے ہوئے ری پولنگ کا مطالبہ کر دیا۔ پی پی امیدواروں کو اسمبلی اجلاس سے پہلے سیٹیں دلوانے کا اعلان۔ کہا حقیقت تک پہنچنے کے لیے کمیشن قائم کیا جائے۔ بلاول بھٹو کا لیگی قائدین پر دھاندلی کر کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کا بھی الزام۔ ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس جماعت سے ہے جو نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے۔ سیاسی میدان میں شکست قبول ہے، دھاندلی قبول نہیں۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکس پر پیپلز پارٹی کے نام تنزیہ پیغام۔ مریم نواز نے کہا دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر پیپلز پارٹی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے۔ نون لیگ کی وزیر اعلیٰ دھاندلی کے ذریعے فارم 47 کے تحت خیراتی مینڈیٹ پر بیٹھے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا الزام۔ پریس کانفرنس میں مریم نواز کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان نے دیکھا مینڈیٹ کسی اور کا تھا۔ مریم نواز نے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے سیٹیں لیں اور پھر وزیر اعلیٰ بن گئی، اور آج کہتی ہیں کہ قیامت کس وقت آئے گی۔ مسلم لیگ نون اب آزاد کشمیر میں بھی دھاندلی کے ذریعے آنا چاہتی ہے۔ نواز شریف بھی چور دروازے سے اقتدار پہ آئے۔ پورا ملک جانتا ہے مسلم لیگ نون 2024 میں دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی، یہ جانتے ہوئے کہ نون لیگ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں آئی اور جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ دیا۔ وڈے انقلابی وڈے جمہوری۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو کرارا جواب۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تب قیامت نہیں آئی جب گھر کی سیٹ لے کر مخالف امیدوار غائب کیے، بلدیاتی انتخابات چوری کیے، ہمیشہ قومی مفاد میں بلیک میلنگ سے 18 سال سے سندھ پر قابض ہیں۔ آپ 18 سال کی کارکردگی دکھائیں، اپنے 18 سال کے کام بتا کر ہمیں شرمندہ کر دو۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ میرپور ڈویژن کے عوام نے پنجاب کی ترقی کو مد نظر رکھ کر ووٹ دیا۔ بلاول صاحب اپنی تقریر میں کسی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ریونڈ کا نام لے کر اسے تصحیح کر نشانہ بناتے ہیں۔ یہ لاہور کی کسی آبادی کا موازنہ لاڑکانہ اور گڑی خدا بخش سے کریں۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات نظر انداز۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے میرپور ڈویژن کے 13 انتخابی حلقوں سے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے اعتراض کردہ حلقہ ایل اے 12 کوٹلی 5 کے حلقے کا نتیجہ بھی جاری۔ ایل اے 12 کوٹلی 5 سے نون لیگ کے محمد ریاست خان کامیاب قرار۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے ایل اے 12 کے متنازع پولنگ سٹیشنز کے نتائج فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔
पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कवार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर न कश्मीर बनेगा न लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। पीटीआई ने बाइकआउट के लिए इसीलिए किया कि वहाँ इलेक्शन के नाम पर फराड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा। हम दुश्मनों का एक और बार हंगकॉन्ग खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। डीएसपी दयार खान समेत 9 एहलकार शहीद, 28 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 हमलावर हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पाक सरजमीन को हम दुश्मनों से पाक करने कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयां। 32 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 32 स्पॉन्सर्ड खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब खैबर में 24 दहशतगर्द हलाक किए गए। बलूचिस्तान के जिला रोशकी में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कराची के इलाके गुलशन इकबाल निजी यूनिवर्सिटी के करीब CTD मोबाइल के करीब दस्ती बम हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़े का नोटिस, SSPE से रिपोर्ट तलब। वाक़े में मुलव्वस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अलहम्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का था। कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की मज़म्मत। फ़रीक़ैन का तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा का भी दौरा। नायब वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार से मुलाकात। मशरिक़ वस्ती की ताज़ा इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अलहम्द अल सबा की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के इक़दामात पर तबादला ख़्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार, मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान कुवैत इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए यकसां विजन रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। मशरक़ वस्ती में अमन व इस्तेहकाम के लिए मशरक़ की मुश्तरका सफारती कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। फ़रीक़ैन का ग़ज़ा, मकबूज़ा मग़रिबी किनारे और मस्जिद अक़सा में बार बार होने वाली खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इज़हार। इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों और आबादकारों के बढ़ते तशद्दुद की मुश्तरका मज़म्मत। पाकिस्तान और मिस्र का ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास की तजवीज़ पर मुशावरत। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी कानून के मुकम्मल एहतराम पर जोर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $5 अरब के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। रोल ओवर से फौरी अदायगियों के दबाव में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट्स हैं। $3 अरब रवां बरस अप्रैल में हासिल किए गए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी कर दी। डीजल ₹2.24 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.06 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹390.62 फी लीटर का मिलेगा। उगरा का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 30 जुलाई के लिए किया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम दरामद के तरीक़ाकार के लिए स्टेयरिंग कमेटी कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास शुरका ने फैसला किया कि स्टेयरिंग कमेटी बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने के मामले पर ज़रूरियात का जायज़ा लेगी। कमेटी में 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। इजलास में गंदम की तलब, दरामदी, हिकमत अमली और वफाक और सूबों के दरमियान मरबूत निज़ाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद और कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FER इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मुख्तलिफ शोबों के टैक्स इस्तादाद के तखमीने के लिए साइंसी तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। हुकूमत टैक्स के हवाले से बरामदी और मकामी शोबों को सहूलियात फराहम करती रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सतह की मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायज़ा। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम डेटा सेंटर की सहूलियात तमाम इदारों को फराहम करने के लिए इक़दामात की हिदायत।
कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड से नेवल चीफ और एयर चीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आमिर रजा को पहले कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक नेवल हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकातों में पेशा वराना अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मानसून का एक और तबाहकुन स्पेल 5 जाने निकल गया। फिरोजवाला और मुल्तान में सैलाबी पानी में डूबने से एक शख्स जान बहा। गुजरांवाला में करंट लगने से नौजवान जान की बाजी हार गया। जलालपुर भटिया में छत गिरने से खातून और 2 बेटियां जख्मी। सरगोदा में छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक हुए। गुजरांवाला और मुरीदके में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। गलियां और सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। पूरे इलाके में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। गोजर खान, हफ्जाबाद और वजीराबाद में तेज़ बारिश। मुल्तान की तहसील जलालपुर में दरिया चनाब के सैलाबी पानी से 2 दर्जन से ज़ायद बस्तियां मुतासर। लोगों की नकल मकानी। सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जान बहक हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों की घन गरज। कटियारा के मकाम पर पानी की सतह 10 फुट तक बुलंद हो गई। शेखपुर की तहसील फिरोजवाला में नाला भीड और नाला ढेग के बंद टूटने से कई आबादियां ताहाल ज़ेरियाब। हज़ारों एकड़ अराजी भी मुतासिर। सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए हैं। लोग घरों की छतों पर पनाह लिए इमदाद के मुंतज़िर। मुरीदके और गिरदनवा में भी सैलाबी पानी से कई देहात का रुख कर लिया। शेखोपुरा में भी नाला ढेग और नाला भेड़ के बिफरने का खदशा। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुरीदके में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। खुराक, अदवायात और मुतासरीन के काम के इंतजाम किए गए।